which have the type of institutions which are growth and development friendly, only those countries have progress and will continue to progress. Societies which have growth and development friendly institutions, those societies are likely to progress and will continue to progress. They are progressing and they will continue to progress. But the societies which do not have growth and development friendly institutions, they are not likely to achieve a high rate of growth, or they are not likely to develop at a faster speed. So the question that is important now is that what are these institutions? Institutions are nothing but simply a set of rules. So I said that growth and development doesn't take place in vacuum. There are so institutions are nothing but simply set of rules. These rules are of two types. There are written rules in the form of traffic laws, in the form of a criminal penal code, in the form of income tax laws, in the form of other laws. These are written rules. And these are written rules. If you are going to violate these rules, then there is a procedure of punishment as well. So these are the written rules that are, everywhere for everyone to see, and these written rules are available. Besides that, in any country and in any society, there are certain unwritten rules. And these unwritten rules are also the part of institution. As I told you, the institutions means set of rules. These rules are of two types, written rules as well as unwritten rules. Now the question, what are these unwritten rules? These unwritten rules are very, very important. These unwritten rules, how marriage will be solemnized, how will you behave to your father, how will you behave to your friend? How will you behave to your mother? How will you behave to your sister? How will you behave to your neighbors? And when a guest comes to your house, how you will treat the guest? How you will welcome them? What type of what is your food habits? Dance? All these are unwritten rules. Even if you are going to violate these rules, the government is not going to punish you. These are unwritten rules. And these unwritten rules, evolve in a society, in a country, and these keep on changing from generation to generation. One generation passes these rules to another generation passes to another generation, and these rules keep on evolving. Those rules which are not growth and development friendly, these rules are wiped out and new rules are added. So these unwritten rules are equally important as compared to written rules. These written as well as unwritten rules together give you the institution, and these institutions work as a facilitator for growth and development. So like this, the research is also the part of this. If you are progressing, if you are growing, if you are developing, research play very, very important role, because if you are spending a lot of money, we are likely to on research and development, we are likely to grow faster. So therefore, for conducting these research, there must also be some guidelines, some rules, some procedure, and some important advisories within which we can conduct the research in a smooth and proper way without creating any problem, without doing any harm either to the individual or to the society or to the country or a particular group. So as such, without doing any harm to the research itself. So therefore, these ethics are nothing but just like set of rules. Ethics are nothing but simply set of rules. And these ethics are very important for not only for individual who is doing the research, not only for individual researcher. These ethics are important for society. These ethics are important for the country. And these ethics are also important for the subject in which you are doing the research. These ethics are also very, very important, because in researches there are we have the production function for ideas, that is for research, that will be mathematical, and there is no point in discussing that. But we see that there sometimes it happens that conducting research becomes very difficult because there is too much research. So the existing research facilitate
create problem in conducting more research, because people have already done a lot of research on a particular thing, on a particular topic, on a particular theme, and doing more in that field becomes very, very difficult. So here, the existing amount of research, existing amount of knowledge create obstruction, and it has a negative impact on future research. But then at the same time, the existing stock of knowledge facilitate more research. For example, we have calculus. Once we have invented calculus, it has led to its application we find in various fields, in various subjects, and it has led to further research. We have computers, we have the softwares, and it has facilitated more and more research. So therefore, existing stock of knowledge facilitate more and more research. So therefore, this research that we are going to conduct, that it should help in conducting more research, it leads to expansion, and it should be good for the growth and development of the country. Some ethics or some guidelines are very, very important. The guidelines will become, more prominent and more important when you will discuss, when you will understand the importance of these guidelines when we will discuss this further. In social sciences, these ethics came quite late, but these ethics were more particular in case of medical sciences, in biological sciences. In fact, research in ethics started from medical sciences and biological sciences. In social sciences, it came quite late. But in social sciences, moreover, there is one field which is clinical psychology. So all the ethics which we have in medical sciences are equally applicable to that particular field. In psychology also, when we conduct the research, then a number of ethical issues are involved, and for that we take the help of these guidelines. But in other discipline, in other subjects of social sciences, we find that the issue of privacy and mishandling of data and misuse of data is more prominent. That for that we need some guidelines, some ethics. And more than that, what is important in social sciences, which are emphasized again and again, is the plagiarism. That is more prominent in social sciences. When we talk about ethics, then plagiarism comes in our mind. Though the misuse of data, mishandling of data, the issue of privacy, all these are also very, very important. But plagiarism is very, very prominent. And because of this prominence, UGC in the year 2018, when UGC formulated the regulation for minimum standard as far as appointment of teachers in the university and colleges are concerned, the UGC also framed certain guidelines for this plagiarism. And in the guidelines, how the plagiarism will be detected, what will be different committees, and what will be the punishment. All these things we find in the UGC 2018 guideline regarding the plagiarism. And these are available. These guidelines are available on the website of University Grant Commission. We will also talk briefly about that. Further, keeping in mind the importance of ethics and research, UGC, University Grant Commission, in the year 2019 made it mandatory that in all the universities, whether these are private universities or say public universities, state universities, central university, whatever may be the type of universities, in all the universities, there should be a 2-credit course for research students on research ethics. This is mandatory from the year 2019. This advisory or this particular, notice or circular, whatever you call, it is available on the UGC website. So from the year 2019, all the PhD students, the research students, in their coursework, they must be taught, they must be given this 2-credit course on research ethics. This is mandatory. Many universities have implemented this. Many universities have yet to implement this. But this is, as far as from the side of UGC is concerned, it is important. So after all, UGC also realized the importance of ethics in research, and that's why
these guidelines pertaining to plagiarism came in 2018. Before 2018, there was no such guideline. At least from UGC, there was no such guideline. Individual universities, individual institutions might be having the guidelines regarding the research or ethics in which this research should be conducted. It is possible. But as far as UGC is concerned, there was no such guidelines. The guideline from UGC came in the year 2018, and from 2019, a 2-credit course has been made mandatory for the research students. So all this happened basically because of the expansion of this internet and because of the digitization, and also because of API, academic performance indicator, that was implemented by UGC, in which we know certain academic score was mandatory, and for that we have to publish the articles and publish the research papers in journals, and we have to publish the books, we have to write chapters in the books. So when this API was made mandatory, teachers were, forced, whether they were willing or not willing, but if they wanted promotion, they had to satisfy that condition and meet that minimum requirement. So therefore, they were forced to publish more and more, and in their zeal to publish more and more, they published it in predatory journals or substandard journals, which also started appearing, substandard journals also started appearing, because when there is a need, then you see there is there will be, when there is a demand, there will be supply. So therefore, we saw that all type of journals, online journals, even offline journal, print journal, they all started appearing because there was a need, and people started publishing articles by paying money. So most of these, a number of these were predatory journal. And if you look at their cover, then the things that they have written on the cover page, you will see all the requirement of UGC are being satisfied. It is peer-reviewed journal, this, that, everything is written. Whatever you want, everything is written there. So therefore, that's why UGC also prepared a care list. UGC also came this idea with a care list, that is a list of quality journals have also been prepared by UGC, that these are the quality journal. But the UGC has kept on changing this care list. Some journals were kicked out, some new journals were also included, because in the UGC also, whether advertently or inadvertently, some standard journal has also been able to find place. That is a fact. We cannot deny that. So therefore, we see that because of all these things, these issues regarding the ethics in research became very, very important, even in social sciences. Otherwise, earlier people were not bothering much about ethics in social sciences. When we talk about research ethics, then it was more applicable in biological sciences, and in case of medical sciences, it was more prominent. In fact, all this ethics and everything guidelines, it came from this medical sciences that we will see soon. So that is explain the importance of ethics in research and what has happened as far as UGC, University Grant Commission, or other regulatory bodies are concerned. Now I'll start my presentation in a more systematic way, and I would like to present my PPT. Let me present it. Yes. So I'll start this PowerPoint presentation, please. I hope you can see my screen. Is it yes, sir. visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Faiza said that I have to be bilingual, so I may continue in English, but if you feel that
something I should explain in Hindi, then please stop me and ask me to do it. Okay. I may not be doing on my own because I may continue in English, but if I am doing so, then please stop me and ask that you should also tell it in Hindi, if you feel so. Otherwise, if you are comfortable and if you understand, there is no problem. So what are the contents of this PowerPoint presentation? The contents are introduction, evolution of research ethics, codes and regulation, objectives of research ethics, general principles of research ethics and society, research ethics and individual, research ethics groups and institutions, research ethics and research community. Then we have Consortium for Academic Research and Ethics, which we call popularly as CARE, UGC CARE list, just we have talked about that. And then we'll also talk about UGC Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institution, that is UGC Regulation 2018. Then advantages of research ethics, limitations of research ethics, do's and don't do's of research ethics, conclusions, and at last we will also give you some references where you can collect further material and you can get more material on this particular topic. Okay. So in research and ethics, there are two things that are involved. What is ethics and what is research? And if you combine these two, then it comes at what exactly is research ethics. So first we talk about research. We all know in case of research, we just frame decide the topic, frame research question, go for review of literature, that is theoretical review as well as empirical review. Then we go for research design. In the research design, and we decide whether we want primary data or we want secondary data. If we have primary data, we prepare the schedule, questionnaire, and we go for pilot survey. After the pilot survey, the results of the pilot survey, we go for data collection, and after acquiring the data, we do the tabulation, coding, and then analyze the data and draw the meaningful inferences, and based on that, we present the recommendations or whatever advices we give on the basis of our research. So this is what we see. Research is a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic, and researchers should focus their research for the good of mankind and for expanding the frontiers of scientific knowledge. You all know about what is research. There is no need, but just wanted to. Then there are certain key features as far as scientific research are concerned. We know that when we conduct the research, we use a sample. We do not conduct the research for the entire population. It becomes very difficult, maybe very time consuming, and also involve a lot of money, and it may be beyond an individual researcher or a small team to conduct a research regarding the population. So we go for sample. Now from the sample we generalize the results for the population, because we are not conducting the investigation or research regarding this particular small sample, but basically we are interested in population, so we do generalization. So it should be conducted in a way that we are able to generalize. Then scientific rigor, that if suppose that in repeated testing and scrutiny, the results should not deviate and results should be same. Then universality and objectivity, that if suppose someone else is going to conduct the same research in the same situation, then results should be same. And of course, originality of research work. One thing I would like to tell you, that in social sciences, there is no guarantee that if someone else is going to conduct the same research, he will get the same result. इस बात की गारंटी नहीं है सोशल साइंस में कि अगर आप वही रिसर्च जो है दोबारा कोई आदमी करे जो आप कर चुके हैं, उसी जगह में करे और वहीं से सैंपल ले, कोई गारंटी नहीं है कि उसको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे आपको मिले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो साइंस होता है, साइंस जो है एग्जैक्ट साइंस है, इसमें जो है आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो एक पर्टिकुलर चीज को जितने वेरिएबल अफेक्ट करते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पे आप केमिस्ट्री ले लीजिए, आपने कहा कि दो केमिकल को मिक्स करें, तो दो केमिकल को अगर हम मिक्स करते हैं तो उसमें जो है दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उस रिएक्शन को, इस एक्सपेरिमेंट को जो अफेक्ट कर सकते हैं, वो है टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से जो आपका थर्ड केमिकल निकलेगा दो को मिलाने के बाद, वो डिफरेंट होगा। टेम्परेचर चेंज कर दें और प्रेशर चेंज कर दें तो केमिकल भी चेंज हो जाएगा, उसके फीचर्स चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि साइंस में हम टेम्परेचर और प्रेशर को लैब में कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम चूहे पर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हम चूहे को बिल्कुल एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसे रखते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड दे सकते हैं, ये सब हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हम साइंसेस में कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर साइंस के हर ब्रांच में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट साइंस में भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंस में ये बहुत पर्टिकुलर है। इसीलिए साइंस में लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट है जहाँ हम कंट्रोल वे में अपने कंट्रोल इन्वायरमेंट में उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं। इसलिए अगर हम उस कंट्रोल उसमें कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट, तो दूसरा कोई अगर उस रिसर्च को करेगा तो उसको जो है सिमिलर या सेम रिजल्ट मिलने के पूरे चांस है, अगर वो चीजें कंट्रोल में रही तो। लेकिन सोशल साइंस में हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल साइंस में जो चीजें हैं उनको हम सोसाइटी में ही हमें देखना है, सोसाइटी को में ही हमें रियलाइज देखना है, सोसाइटी में एनालाइज करना है। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सोशल साइंस में हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करें। चांसेस बहुत कम है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने के सोशल साइंसेस में। हालांकि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, सोशल साइंसेस में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम सोसाइटी को एज इट इज देखते हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं, इसलिए सोसाइटी को हमें एज इट इज जो है परखना होता है, जांचना होता है, समझना होता है। तो इसलिए अगर इसमें हमने कोई रिसर्च किया, कोई सैंपल लिया, तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरा आदमी जो है वो भी आके उसी एरिया में से सैंपल ले और उसको भी हमारे जैसे रिजल्ट मिले। इसके ऐसे कोई चांस ज्यादा इसमें नहीं है। साइंस में है, साइंस में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सोशल साइंस के रिसर्च में और साइंस के रिसर्च में कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का। So that is there. That point is very important. Then we see that difference between clinical and social science research. There is a difference. Clinical research, why we are talking about clinical research? Because later on you will see that research ethics, all originated and started from clinical research. There was misuse, there was exploitation, and from there the research ethics, started, and guidelines and code regulations were framed. So there is a need to distinguish between clinical research and social science research. So in clinical research, we conduct, the survey, and we conduct the experiment whether we want to test new medicine or we want to know the efficacy of existing medicine. We want to conduct a test. We may conduct this test on human being by conducting the operation or by taking the fluid or by taking the blood, or it may be just by giving some medicine and observing the person. So in clinical research, there are 4 phases. But in case of social sciences research, there are 8 phases. There are different phases. That is, we decide the topic. As I just told you, review of literature and research design, all these are there. These are different phases. We told you that in clinical trial, there are 4 phases, and in social science research, there are 8 phases. So these are different phases that are given in clinical research. What is the first phase, second phase, third phase, and fourth phase? Similarly, the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and 8 phases are also given in clinical and social science research. They will not spend much time on it, you can see. So now we come to the defining ethic. What is ethic? I have already told you about it, but nevertheless, a discipline dealing with what is proper course of action for man. A branch of philosophy that looks at what is good and what is bad. A system of obligation that we have towards others. Also known as moral philosophy, involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong behavior, a study of principles
guiding the good of individual within the context of social interactions and community. Basically, it is nothing but a set of rules or procedure. So ethics defined, we have meta-ethics is a branch of analytical philosophy that explores the status, foundation, scope of moral values, properties, and what's. Then we have normative ethics. Normative ethics talks what should be and what ought to be. And we know that all Aristotle, Socrates, Kant, Stuart, Bentham, all have talked about these codes and moral theories they have given. Then we see applied ethics, the actual, that is, that is applied, that when we carry out the research, when we carry out the experiment, the ethics that are, applied, because many types of, ethics may be abstract in nature, which may not be actionable or which you may not apply. That's possible. That's why there is a question of applied ethics, though we have criticized this later on. For example, in my next slide, we have theoretical ethics versus practical ethics. Because the term applied ethics is a misleading term. Why it is misleading term? Because when we have ethics, then application is there. Because when we have ethics, it means we are talking about applied ethics. It's not, there is no point in talking about theoretical ethics, which cannot be, implemented, which cannot be used. So the term applied ethics is misleading. It makes practical ethics sound like applied mathematics. Just like in mathematics, we have, theoretical as well as applied mathematics. That is, applied mathematics means application of these mathematical tools and techniques in various fields of knowledge. So that we call as applied mathematics. There is no such thing as far as in ethics is concerned. The ethics are framed for application. Ethics, when we frame the ethics, we do frame ethics for application. Keeping in mind its application, we frame the ethics. In fact, it's application that give rise to the importance as usefulness and need for framing the ethics. Ethical theories sometimes give no clear-cut answer to a special moral problem. There are some number of moral problems where ethical theories do not give any clear-cut answer, like euthanasia and abortion. There is no means ethical answer whether we should go for it or we should not go for it. That is, very, very controversial thing. There are a number of dimensions involved. So now we are in a position to define research ethics. Research ethics is nothing but a code of guidelines on how to conduct scientific research in a morally acceptable way. So basically nothing but set of rules, procedure, or guidelines for conducting scientific research in a morally acceptable way. It is nothing but simply principles and standards that help researchers to uphold the value and standard of knowledge construction. Research ethics, so we have here explain in more detail, that is what we exactly mean by research ethics. And these ethical responsibilities on the part of researcher are broadly divided into three parts. There are norms for freedom of research, good research practice associated with researcher, quest for truth and independence and the relationship between researcher, norms that regulate relationship to individual and groups directly affected by the research, and norms regarding social relevance and users' interest. So when we are conducting the research, the other individuals may be affected, other groups may be affected, society may be affected, or there may be impact on the country as well. So therefore, we have to prepare the norms to check the adverse effect. Universities and university colleges have a statutory responsibility for making sure that research education, of course, they have the responsibility that researches are conducted in a scientific manner and the ethical issues are tackled, involved there are tackled. Guidelines for research has to be framed in, it's not a legislation. It should not be in the form of rules, legislation that if you do this,
or you will be punished like this. This is a gentleman's agreement, because the researchers are the learned peoples, and for them, the guideline will be enough, and they will automatically, follow those guidelines. It's not like legislation. Ethical norms, which are formulated as guidelines for research, are intended to serve an advisory, guiding, and preventing function rather than prescriptions and prohibition. It's not like, other rules and regulation that we frame, which are in the form of legislation. This is just advisory or guidelines for the researchers to conduct the research in an orderly and scientific way without causing any adverse impact. We come to the evolution of research ethics. Evolution of research ethics, codes and regulations. You know that before the 20th century, in medical sciences, the trials and experiments were conducted by doctors, usually on individuals. There was no large-scale trials, large-scale experiments. But in the 20th century, the doctors started conducting large-scale trials and large-scale, tests and large-scale experiments on larger group. And the people on whom these tests, trial, and experiments were conducted, they were of disadvantaged groups, like prisoners, like slaves, like women, like poor, and tribes, blacks. These are the people on whom these experiments, trials, and tests were conducted without their consent, without their knowledge of the consequences. So even today, it is happening. There are multinationals. And if they have, suppose, invented a new medicine and they want to see that how it will affect the human being, what will be its consequences, they want to see its effectiveness, then what they will do, that in a developing country, they will contact a doctor. In a developing country, in a poor country, they will contact a doctor and they will say that we want to give you a project. In the project, we will supply you free medicine. And you have to give this medicine to the, patients, and then report us, these are our forms, these are our requirements, and you have to do accordingly. And this is a project, we will give you so many dollars and all. So the keeping in mind the amount of dollar the doctor get in, interested that, okay, it will also enhance my practice because I'll be giving to the patient free medicine. तो डॉक्टर ये समझता है कि साहब हमारी भी प्रैक्टिस इससे बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि हम जो है फ्री मेडिसिन देंगे. तो ये मल्टीनेशनल आज भी ये काम कर रहे हैं. ये गरीब कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं. जब इन्हें कोई नई मेडिसिन का टेस्ट करना होता है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर हैं, बड़े टफ हैं. वहां पर अगर थोड़ा भी चूक हुई तो इनको काफी उसका हर्जाना देना पड़ सकता है, काफी उसकी पेनाल्टी देनी पड़ सकती हो, वह काफी भारी पड़ सकता हो सकता है ये जेल में भी जा सकते हैं. लेकिन समझते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में, गरीब कंट्री में अभी वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम नहीं किए, उसकी जरूरत शायद नहीं महसूस हुई, तो उसका क्यों ना एडवांटेज लिया जाए और ये एक्सपेरिमेंट, ये सारे टेस्ट वहीं कर लिए जाएं. तो कैसे किए जाएं, तो वो भी करते हैं कि किसी डॉक्टर को जिसकी क्लिनिक जिसका चल रहा, तो उससे कांटेक्ट करते हैं कि साहब हम आपको एक प्रोजेक्ट देना चाहते हैं. ये प्रोजेक्ट जो है मलेरिया से है, ये डायबिटीज से है, ये सिफिलिस से, ये इससे रिलेटेड है, इसमें हमारे मेडिसिन हैं बहुत स्टैंडर्ड है और आप इसे देखिए नई मेडिसिन और देखिए इसके रिजल्ट और ये सब हमें बताइए क्या है. तो डॉक्टर सोचता है भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया है और इसमें फ्री मेडिसिन आ रही है, वहाँ से कांटेक्ट हो रहा, हमें अमेरिका का वीज़ा भी दिया जा रहा, घूमने भी दिया जा रहा, फैमिली भी हमारी जा रही, और हम इंग्लैंड में भी कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने जा रहे हैं, जापान में भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं. तो हमारे वो समय बहुत अट्रैक्ट होता है और फॉरेन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है. और जो उसके पास पेशेंट आते हैं, गरीब आते हैं, उनको कहता है भाई लीजिए ये मेडिसिन मैं प्रेस्क्राइब करूँ, पर्ची दिया और कहा मेडिसिन भी ले लो.
तो लोग वाह वाह करते हैं, भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो तो ना सिर्फ देख रहे हैं फ्री में, बल्कि वो हमें फ्री में मेडिसिन भी दे रहे हैं। उनको क्या पता कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा, ट्रायल चल रहा और टेस्टिंग हो रही है उनको। बहरहाल ये गरीब कंट्रीज में जो है आज भी मल्टीनेशनल काम कर रहे हैं, और लोगों के बिना कंसेंट के, लोगों को बिना इन्फॉर्म किए हुए, लोगों को बिना बताए हुए कि क्या किया जा रहा है, उनके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, ये काम आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले चलता था, और ये मल्टीनेशनल कर रहे गरीब कंट्री में। तो 20वीं शताब्दी से पहले होता ये था कि इंडिविजुअल लेवल पे डॉक्टर जो है अपना टेस्ट करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी में हमने देखा कि लार्ज स्केल जो है टेस्टिंग शुरू हो गई, लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। और इसमें जो टेस्टिंग लार्ज स्केल करना है, तो लार्ज स्केल इतने लोग मिलेंगे कहाँ, तो इसमें आमतौर पर जो टेस्टिंग और ट्रायल किया जाता था वो ऐसे लोगों को किया जाता था जो बेचारे डिफेंसलेस हों, जो कुछ कह ना पाए। जैसे कि प्रिजनर्स हैं, अब प्रिजनर्स हैं उन पर जो चाहो टेस्ट कर लो, स्लेव्स हैं उन पर जो चाहो टेस्ट कर लो, और औरतों को ले आए वहां पर जो चाहो टेस्ट कर लो, ट्राइबल्स हैं उनको जो चाहो अपना टेस्ट कर लो, उनको गलत बता करके कि साहब इससे इससे ये फायदा है, ये फायदा। गरीब लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर लो, तो आमतौर पर इन्हीं लोगों पर वो सारे जो है टेस्टिंग किए जाते हैं। कुछ पागल हैं बेचारे, उन पर उनको पता ही नहीं क्या है, तो उन पर टेस्ट कर लो, कुछ बच्चों पर टेस्ट कर लो, तो इन्हीं लोगों पर टेस्ट करते थे। और इन टेस्ट की जो है एक तरह से हद तब हो गई जब दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जो दूसरा विश्व युद्ध कहें वो शुरू हुआ। इस सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन डॉक्टर्स ने बहुत टेस्ट करना शुरू कर दिया। और टेस्ट करने के लिए वो जो है, जो उनके प्रिजनर्स होते थे, जो उनके पास स्लेव्स और प्रिजनर्स होते थे, उन्हीं पर सारा टेस्ट करते थे। जैसे जर्मन डॉक्टर को टेस्ट करना था कि भाई अगर हमारा पायलट जो है वो पैराशूट से किसी बर्फीले पानी में गिर जाता है, ऐसे पानी में, ऐसे समुद्र में गिरता है जहां बर्फ जमी हो, जिसका पानी बहुत ठंडा हो, तो देखना चाहते थे कितनी देर हमारा पायलट जो है उसमें सरवाइव करेगा, और उसके लिए क्या किया जा सकता है उसको इससे निकलने के लिए। अगर वो इससे सफर कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पानी में गिरने पर हम निकाल के ले आए, तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने प्रिजनर्स पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ प्रिजनर को ले गए, लोहे का कंटेनर बनाया, उसमें उनको बर्फ डाला और उसमें बर्फ की सिल्ली डाल के ठंडा पानी उन्हें डुबो दिया उसमें। अब कहा उसके बाद उसका देख रहे हैं इम्पैक्ट कि भाई इस पर कितनी देर सरवाइव कर सकता है, क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और इस इम्पैक्ट को, इसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब प्रिजनर्स हैं उन पर कर लीजिए एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से उनको देखना था कि हमारे जो पायलट्स हैं, वो हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो हाई एल्टीट्यूड पे जानते हैं जब ऊंचाई ज्यादा होती है तो प्रेशर कम हो जाता, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो कहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उन पर क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, वहां फाइटिंग करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, और अगर वो मान लिया उस पर नेगेटिव असर होता तो उसको कैसे दूर किया जा सकता, उस पर क्या टैकल किया जा सकता। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्रिजनर को लिया और लोहे के कंटेनर में बंद कर दिया और बहुत हल्का सा ऑक्सीजन दिया और प्रेशर बहुत कम कर दिया, और देखा कि भाई ये कैसे सरवाइव कर रहा, क्या कर रहा। तो इंजरी है, अब सोल्जर्स इंजर्ड हो गए, तो सेम टाइप की इंजरी जो है प्रिजनर को भी कर दिया और देखा कि भाई इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे ही प्रिजनर्स के ऑर्गन्स निकाल लिए। कोई सोल्जर आया इंजर्ड होके, प्रिजनर का ऑर्गन निकाल लिया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में। जर्मन डॉक्टर्स ने बहुत ये सब केसेस किए और इस तरह की बहुत सारे वारदात हुए, और 23 जर्मन डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोसिक्यूट किए गए वार क्राइम के लिए। इस तरह के केसेस उन्होंने जब किए तो उसके बाद, तो इन सभी की वजह से जो पहली बार जो है एक कोड बनाया गया, एक कंप्रहेंसिव कोड बनाया गया, भाई जो अगर मेडिकल साइंसेस में रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंट करना, इसकी जरूरत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। We can't say that it is not needed in medical sciences. You know, experiments have to be conducted. And unless we test a new medicine, how can we know that the efficiency and efficacy of that new medicine, and how can we treat the disease? भाई डिजीज के लिए कोई नई मेडिसिन निकाला तो उसका तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, ट्रायल करेंगे, कुछ उस पर रिसर्च नहीं करेंगे तो कैसे नई मेडिसिन आएगी। तो ये भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ इथिक्स, कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस बनने चाहिए, और उस गाइडलाइंस के तहत जो है ये ट्रायल, ये टेस्टिंग और रिसर्च होने चाहिए, ताकि जो इसके एडवर्स इम्पैक्ट है उनको चेक किया जा सकते,
तो इसी को ध्यान में रख के न्यूरमबर्ग कोड जो है तैयार किया गया, 10 प्रिंसिपल्स। इसको 1947 में न्यूरमबर्ग जर्मनी में है, तो वहां से जो है इसको पहला हुआ। लेकिन ये उसके बाद जेनेवा डिक्लेरेशन 1947 में ये लाया गया, लेकिन ये सब सफिशिएंट नहीं था। तो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने 1964 में हेलसिंकी डिक्लेरेशन, एक कंप्रहेंसिव कोड बनाया, गाइडलाइन बनाए, कोड्स बनाए, रेगुलेशन बनाए कि कैसे मेडिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस में इन पर हम रिसर्च करेंगे। क्योंकि तब तक जो है धीरे धीरे जो है ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स, इन सब भी इश्यूज आने लगे। पहले तो लोग समझते थे कि जानवरों को कोई राइट ही नहीं है, और दूसरे इंसान जो गरीब हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप, उनके भी कोई राइट नहीं, तो उनको जैसा चाहो तैसा करो। तो ये हेलसिंकी डिक्लेरेशन में कुछ कोड और रेगुलेशन बनाए गए, कंप्रहेंसिव वे में सिस्टमेटिक एफर्ट किया गया, और इन कोड्स को अपडेट किया गया, इनमें अमेंडमेंट किया गया 1975 में, 1983 में, 1989 में, 1996 में, फिर 2000 में, और लेटेस्ट तरीके से 2008 में। लेकिन ये गाइडलाइंस जो हैं ये सफिशिएंट नहीं थे, और इसलिए वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने 1975 में कुछ इंडिपेंडेंट कमेटीज बनाया। ये कमेटीज बना दिया कि ये कमेटीज अब जो हैं रिसर्च को मॉनिटर करेंगी और इसको करेंगी। तो इसी तरह से नीचे जो है एक सिफिलिस एक बीमारी होती है, उस पर कैसे जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, गरीब जो है ब्लैक्स पे उस पे एक्सपेरिमेंट किया गया दवा पर, उनको इलाज भी नहीं दिया गया, उनको बस दे करके छोड़ दिया गया। जैसे कि मतलब कोरोना को वायरस इंजेक्ट करके आपके बॉडी में, और उसके बाद छोड़ दिया गया, नहीं उसको भाई आप वायरस इंजेक्ट कर दिया, अब आप उस पर निगेटिव असर हो रहा है तो उसको ट्रीट नहीं किया, बस कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया कि क्या असर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये दवा कैसे इफेक्टिव है, तो उनको एज ए सब्जेक्ट जो है इस्तेमाल किया गया। इस तरह के बहुत सारे हैं, अब इसकी ज्यादा देना मिसालें हम नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत टाइम इसमें खर्च हो जाएगा, लेकिन इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए 20th सेंचुरी में, लार्ज स्केल पे किए गए, और लार्ज स्केल पर ट्रायल इन्हीं पे किया जाता, डिसएडवांटेज ग्रुप पे ही कर सकते थे। जो पढ़े लिखे थे, जो वेल ऑफ थे, उन पर तो नहीं कर सकते आप टेस्ट, वो लोग तो शायद तैयार भी नहीं होंगे इस टेस्ट के लिए। तो अब इसके बाद एक नेशनल रिसर्च एक्ट 1974 में, ये सब डेवलपमेंट अमेरिका में हुए। नेशनल रिसर्च एक्ट क्रिएटेड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च, ये भी अमेरिका में ही बना। और द कमीशन ड्राफ्टेड, कमीशन ने फिर एक रिपोर्ट ड्राफ्ट किया 1976 में, 1976 में, पॉपुलरली वी कॉल्ड इट एट Belmont report, that is very good report. Then in 1981 Department of Health and Human Sciences and Food and Drug Administration laid down regulation based on Belmont report. 1991 Federal Policy for Protection of Human Subjects as our common rule was adopted to conduct or fund research involving human subjects. इनको अगर हम शॉर्ट में देखें कि क्या क्या कोड्स और रेगुलेशन जो बने इन रिसर्च को एक ऑर्डरली मैनर में, एक साइंटिफिक मैनर में करने के लिए, ताकि विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग एनी इंडिविजुअल, एनी ग्रुप और सोसाइटी एज सच, एंड द टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसके लिए कुछ कोड बनाए। पहला जो था बर्लिन कोड था, मच एम्फेसिस ऑन बेनिफिशियंस एंड ऑटोनोमी। देन गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, बड़े छोटे एफर्ट थे। एक्चुअल जो कोड बने हैं जो कंप्रहेंसिव वे में, वो न्यूरमबर्ग में बने 1946 में, 7 में। फिर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी मैंने बताया 1964 का, बेलमंट रिपोर्ट है 1978 का, काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंस गाइडलाइंस 1982 में, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन 1990। अब जो कोड बन रहे हैं वो मेडिकल साइंसेस के रहे, वो बहुत कंप्रहेंसिव हैं, उसमें नई नई चीजें ऐड की जा रही, क्योंकि अब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और एनिमल राइट से बहुत वोकल और बहुत स्ट्रांग हो गए। तो अब उस तरह का तो रिसर्चेस नहीं की जा रही जैसे पहले रिसर्चेस
की जा रही, क्योंकि आज सिचुएशन जो है बेटर है। तो आपने इसमें देखा कि जो इथिक्स की शुरुआत हुई वो मेडिकल साइंसेस से हुई, और बेसिकली इसकी जरूरत इसीलिए महसूस हुई कि लोगों ने जो है वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे उन्हीं पर सारा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, बिना उनसे कंसेप्ट लिए हुए, बिना उनको जानकारी दिए हुए, बिना उनसे पूछे हुए। तो ये इसलिए जो है इसकी जरूरत महसूस हुई, शुरू हुई मेडिकल साइंस। ये बेलमॉन्ट रिपोर्ट है जो आप देख लीजिएगा बाद में। अब हम आते हैं कि सोशल साइंसेस में। देखिए, सोशल साइंसेस में मैंने बताया कि उस तरह के इश्यूज इन्वॉल्व नहीं थे जैसे इश्यूज जो हैं आपके इन्वॉल्व थे उसमें मेडिकल साइंसेस में, वैसे इश्यूज सोशल साइंसेस में नहीं थे। हाँ, सोशल साइंस में भी मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में एक ब्रांच है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और वो बिल्कुल उनके लिए वही गाइडलाइन और उसी की जरूरत है जो मेडिकल साइंसेस में जरूरत पड़ती है। और साइकोलॉजी में भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसमें भी इथिकल इश्यूज काफी इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेस में, जैसे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, या वीमेन स्टडीज टाइप के तमाम जो और डिसिप्लिन है, उसमें फिजिकल एजुकेशन जो और डिसिप्लिन है, उनमें जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं, वो इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, वो बेसिकली जो है वो प्राइवेसी का है। जैसे आपने कोई डेटा मुझसे लिया, अब हमने कोई गुड फेथ में प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, तो इसका मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दिया, तो अब ऐसा नहीं कि उसको आप पब्लिक कर दें, उसको सबको बता दें। तो इस तरह की प्राइवेसी का इशू है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का इशू है, डेटा का मिस हैंडलिंग और मिसयूज है। हमने जो डेटा दिया आपके रिसर्च में हेल्प करने के लिए दिया, आपने बताया कि इससे रिसर्च करेंगे, इससे ये फायदा होगा, ये फायदा, अब उस डेटा को आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू था वो प्लेगरिज्म का था, कि भाई किसी और का वर्क है उसको आप अपना बना के पेश कर रहे हैं, कहीं से आपने लिफ्ट कर दिया, उसको आप जो है एक्नॉलेज नहीं किया। तो प्लेगरिज्म के इश्यूज जो हैं सोशल साइंसेस में ज्यादा इन्वॉल्व थे, और डेटा के मिस यूज और मिस हैंडलिंग। तो यहाँ जो इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व थे सोशल साइंसेस में, उनका डायमेंशन बिल्कुल अलग था कंपेयर टू मेडिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। लेकिन ये जो कोड बनना शुरू हुए, जो गाइडलाइन बनना शुरू हुए, उनकी शुरुआत वहीं से हुई, और बाद में वो गाइडलाइंस जो हैं वो सोशल साइंस में भी आ गए, और अब यहाँ पर भी इथिकल इश्यूज जो हैं अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि बहरहाल ये इंफॉर्मेशन जरूरी ये है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, ऐसा हुआ कि कई स्कूल थे, स्कूल में मालूम हुआ जो स्कूल ने एक एनजीओ को जो है बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया बिना पेरेंट्स के कंसेंट लिए हुए। तो भाई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जो एडमिशन दिलाया स्कूल में, और उसमें जो स्कूल को इंफॉर्मेशन दिया वो गुड फेथ में दिया, स्कूल के इस्तेमाल के लिए दिया, इसलिए नहीं दिया कि स्कूल जो है उसको एक थर्ड पार्टी को, एक दूसरे एनजीओ को जो है वो इंफॉर्मेशन पास कर दे। तो इस तरह से बच्चों के बारे में और भी इश्यूज हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में हैं, जिसको जो है दूसरा उसको नहीं वो कर सकता, इस्तेमाल कर सकता। तो इश्यूज जो हैं वो इथिकल इश्यूज जो हैं सोशल साइंसेस में भी आए, और प्लेगरिज्म का मैंने बताया जो है इशू इज मोर इम्पॉर्टेंट एज फार एज सोशल साइंसेस। लेकिन इसका डायमेंशन वो नहीं है जो, और इसकी सीवियरिटी भी उतनी नहीं है जितना कि ये मेडिकल साइंसेस में है और बायोलॉजिकल साइंसेस में, क्योंकि वहाँ लाइफ एंड डेथ का मसला आ जाता है। अब आप कोई गलत जो है दवा आप मुझ पर एक्सपेरिमेंट करें, मुझ पर ट्रायल करें, उसका टेस्टिंग करें, तो हो सकता मैं मर जाऊं, हो सकता मैं अपंग हो जाऊं, हो सकता है ऐसी पोजीशन में हो जाऊं कि मैं बेकार हो जाऊं। तो ऐसी वहाँ लाइफ एंड डेथ का इशू इन्वॉल्व है। जो मेडिकल साइंसेज में जो रिसर्च है वो लाइफ एंड डेथ का इशू इन्वॉल्व है। ऐसे लाइफ एंड डेथ का ऐसा इतना इंपॉर्टेंट इशू यहाँ नहीं है, होता हो यहाँ भी है, ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। आदमी जो है इतना मेंटल है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया, तो इससे वो स्ट्रेस में आ गया, उस स्ट्रेस में आने के बाद वो खुदकशी कर सकता है, वो डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन में वो ऐसा एक्शन ले सकता है कि वो खुदकशी कर ले। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो उसने आपको बता दिया गुड फेथ में, आपने कन्विंस किया कि भाई ये रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसने बता दिया, अब आप उसको पूरा पब्लिक कर रहे हैं,
तो हो सकता है उससे वो मेंटली डिप्रेस हो जाए और डिप्रेस होके वो भी खुदकशी कर सकता है। यहाँ भी है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन वो उस नेचर का नहीं है जैसा कि मेडिकल साइंसेस में। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, वी हैव गिवन द ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन पार्टिसिपेंट, their dignity, right, welfare, to ensure that research is conducted in a manner that assists the interest of individual groups and society as a whole. We have told you about this. To examine research activities and projects for their ethical soundness, considering issues such as management of risk, protection of privacy, and process of informed consent. Informed consent का मतलब है कि जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको पूरी बात आप बता दें कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस डेटा का कहाँ इस्तेमाल होगा, इसका कैसे इस्तेमाल होगा, सारी उसकी ले लें। और इन सब के बताने के बाद अगर वो तैयार है तो इसका मतलब वो उसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि भाई उसको सब चीजें बता दी गई और बताने के बाद उसने कंसेंट दिया है तो ठीक है भाई, वो कोई बात नहीं, इस तरह के रिसर्च करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे चीजें हैं। नाउ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं रिसर्च एथिक्स के, ब्रॉड, ये चाहे रिसर्च किसी फील्ड में हो, इन एनी फील्ड, मे बी इन मेडिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंस, व्हाट एवर मे बी, सभी जगह ये इक्वली एप्लीकेबल है। ऑनेस्टी, वी नो, इंटेग्रिटी, ऐसा नहीं दूसरे का रिसर्च अपना बना लें और झूठ बोलें। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी ऐसा कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और दूसरे लोग भी उसे कर सकते हैं। जो आप रिसर्च डिजाइन बनाएं, जो चीजें, जो आप डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरे भी उसको इस्तेमाल करें और देखें कि भाई आपका जो रिसर्च है कहाँ तक सही है। ऑब्जेक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे दो जो हैं, जो मेडिकल फील्ड्स हैं, आयुर्वेदा और यूनानी, इसमें इन्हीं सबसे इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो लोगों ने रिसर्च किया वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, किसी को कुछ बताते नहीं थे, अपनी दवा ढूंढ लिया, अपने तक ही रखा और बेटे को भी नहीं बताया, घर वालों को भी ना बताया, उसके बाद खत्म हो गए, दवा भी खत्म हो गई, तो इसलिए ग्रोथ नहीं हुआ। और एलोपैथी में ऐसा नहीं है, और इसलिए देखिए एलोपैथी जो है ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है। यहाँ पर जो है जो भी चीजें सब हैं ओपन में हैं और बुक फॉर्म में आ रही हैं और रिसर्चेज आ रही हैं, तो उससे जो है उसका सब्जेक्ट का फर्दर ग्रोथ हो रहा, और उस तरह का ग्रोथ जो है हमारे यूनानी और इन सब में नहीं हुई, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी लोगों ने काफी बरती और चीजों को आम नहीं किया, अपने तक ही रखा, भाई मेरी इंपॉर्टेंस बनी रहे और मेरे पास ही लोग दवा लेने आए। इन्फॉर्म कंसेंट, मैं पहले ही बता चुका, मिनिमाइजिंग द रिस्क, तो इसका जो रिस्क है उसको पूरी तरह से मिनिमाइज करने की कोशिश किया जाए, फिजिकल या साइकोलॉजिकल या किसी तरह का हार्म या सोशल डिसएडवांटेज से कॉज न किया। राइट टू विड्रॉ, राइट टू विड्रॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गया, आपने हमें सारी चीजें बता दिया, मैं तैयार हो गया, लेकिन उस टाइम में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छी तरह नहीं समझ सका। अब बीच में मुझे एक राइट होना चाहिए, राइट टू विड्रॉ, यानी जब मेरी समझ में पूरी बात आ गई तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, वापस हट सकता हूँ। आप ये नहीं कह सकते नहीं साहब आपने तो कंसेंट दिया था, वो आप कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है जब आपने बताया हो, जब आपने हमसे कंसेंट लिया हो, तो हमने पूरी बात हमारी समझ में ना आई हो और हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके सीवियरिटी का उतना अंदाजा ना हो। अब हमारी समझ में आ गया है कि भाई बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हैं, तो अब हम विड्रॉ करने चाहते हैं, इसलिए राइट टू विड्रॉ भी होना बहुत जरूरी है। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन या पर्सनल आपको दी जा रही है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है, कि आप उसे पब्लिक ना करें बिना उस पर्सन को इन्फॉर्म किए हुए, उस ग्रुप को, उस सोसाइटी को इन्फॉर्म। Non-discriminating, ensure that no individual is discriminated on the basis of age, gender, race. ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ ही इंडिविजुअल पे कर रहे हैं, कुछ ही ग्रुप पे कर रहे हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स, देखिए तो हम अब जानते हैं कि हमारे अब पेटेंट और कॉपीराइट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में सेटअप हुआ, तो उसने गाइडलाइंस बना दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ये तमाम जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है
और ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, सीक्रेट नॉलेज है, ट्रेड सीक्रेट है, इन सब के लिए बाकायदा जो है रूल्स बनाए गए हैं। और रूल्स बनाने के बाद उन्होंने कहा, डेवलपिंग कंट्रीज को उन्होंने 10 साल का टाइम दिया कि 10 साल तक आप अपने कानून बना लीजिए, आपने रूल्स बना लीजिए, नेसेसरी लेजिस्लेशन बना लीजिए, और उसके बाद 10 साल बाद जो है इस कानून को पूरी जो भी WTO के मेंबर हैं सब पे ये कानून इक्वली एप्लीकेबल होगा और सब पे यही कानून चलेगा। तो WTO जो है वो बना था 1995 में, 1995 में, वहां से 10 साल जोड़िए तो 2005 में होता है। तो 2005 में इंडिया में भी जो है वो पेटेंट लॉज और कॉपीराइट लॉज वो बिल्कुल WTO के लाइन पे ही अब बन गए हैं और WTO के हिसाब से बन गए। जो कॉपीराइट और पेटेंट लॉज जैसे अमेरिका में वैसे इंडिया में भी हैं, सब अभी एक हो गए हैं सब जगह। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। इंडिया ने जानबूझकर पेटेंट लॉ को ऐसा डायलूट किया और उससे जो है ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो ड्रग इंडस्ट्री है, जो दवा की कंपनियां हैं, इनको बहुत फायदा हुआ। क्योंकि जो इंडिया का जो पेटेंट एक्ट था 1970 का और 1972 में पेटेंट रूल बनाए गए, उसी एक्ट के लाइट में पेटेंट के कुछ कानून रूल्स बनाए गए। तो ये जो पेटेंट एक्ट था 1970 एंजॉय कर रहे हैं और पूरा बर्डन उसी ग्रुप पे है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो पुअर ग्रुप है, उन पर आपने पूरा बर्डन डाल दिया और दूसरे ग्रुप जो है खाली बस एंजॉय कर रहे हैं और जो उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। लीगलिटी इंप्लाइज दैट रिसर्चर नोज एंड ओबेज रेलेवेंट। हर कंट्री के अपने अलग अलग लॉज होते हैं, कानून होते हैं, तो रिसर्चर को जो उस कंट्री के, और कुछ पॉलिसी भी गवर्नमेंट की अलग अलग होती है डिफरेंट कंट्रीज में, तो रिसर्चर को उसको भी फॉलो करना चाहिए। केयरफुलनेस इंश्योर दैट केयरलेस नेग्लिजेंस। देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, अगर केयरफुल नहीं है तो नेग्लिजेंस की वजह से भी नुकसान होते हैं, इंडिविजुअल को हो सकते हैं, ग्रुप के, तो उसके बारे में जो है जरूरी है कि वी शुड बी केयरफुल। रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग, जो जैसे हमारा कोई स्टूडेंट है, PhD स्टूडेंट है, MPhil स्टूडेंट है, या कोई स्टूडेंट हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई स्टूडेंट काम कर रहा, तो उसकी हम एक बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबल जो है मेंटरिंग करें कि ताकि जो है वो बिल्कुल केयरफुल रहे और रिसर्च को उसी गाइडलाइंस के तहत करे जैसे जैसे करना चाहिए। और कलीग्स के लिए भी रिस्पेक्ट। एनिमल केयर, हमने बताया कि एनिमल राइट्स भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ऐसा नहीं कि एनिमल पे आप जो चाहें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो एनिमल्स के लिए जो है आवाज उठाते रहते हैं। सो वी हैव टू केयरफुल। This is research ethics. There is a website and you can use this, and that is there, but later on. Now we have here different link with the research ethics and society. So research ethics और society के बीच में क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है, तो कुछ नाम्स हैं, हर सोसाइटी के कुछ नाम्स हैं, वैल्यूज हैं, फ्रीडम ऑफ रिसर्च है, ये सोसाइटी। लेकिन जो रिसर्चर है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए सोसाइटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, और उसको फ्रीडम पूरी होगी रिसर्च की, लेकिन सोसाइटी पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो उसके कानून हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। रिसर्च एथिक्स और इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल पे ज्यादा इम्फेसिस है, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो इंडिविजुअल पे ही करते हैं, और जाहिर सी बात है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे भी करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप पे भी करते हैं। जैसे ट्राइबल पे एक्सपेरिमेंट करने लगे कि साहब ट्राइबल पे क्या असर पड़ेगा, बच्चों पे करने लगे तो बच्चों का ग्रुप हो गया, और पागल लोगों को करने लगे तो पागलों का ग्रुप हो गया, औरतों पे करने लगे तो औरतों का भी ग्रुप होता। लेकिन बेसिकली इंडिविजुअल का इशू इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे अकेले हो, लेकिन इंडिविजुअल का इशू बहुत है। ह्यूमन डिग्निटी, जो रिसर्चेस हैं उसमें ह्यूमन डिग्निटी का खास ख्याल रखना पड़ेगा। ह्यूमन डिग्निटी को जो है, सेकंड है प्राइवेसी, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि उसकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और जो प्राइवेसी, उसको मेंटेन करते हुए यू हैव टू डू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि जो कंसेंट उसकी लें, लेकिन उसको पूरी चीजें बता करके तब उसका जो है कंसेंट लें, ये भी बता चुका हूं। इम्पेयर्ड और एब्सेंट कैपेसिटी, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इस पोजीशन में नहीं होते वो कंसेंट देने के। जैसे एक बच्चा है,
तो बच्चे को अभी इतनी समझ नहीं है कि वो आपने उसे बहला फुसला के राजी कर लिया कि साहब बेटा ये एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन बच्चा उस पूरे कॉन्सिक्वेंसेस और चीजों को समझने की पोजीशन में नहीं है। कोई शराबी है, उस पर आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, कह दिया शराबी ने कहा तो था, हाँ कहा था इसने कि एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, लेकिन शराबी क्या इस पोजीशन में है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को रियलाइज करे और पूरी चीजों को समझे और कंसेंट देने? इसी तरह से कोई पागल है। तो इसमें जो है उनमें जो है बहुत ही केयरफुल रहना, उनके ऑल टुगेदर डिफरेंट कानून और गाइडलाइंस की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं है। Confidentiality, that is very, very important, that whatever information you are getting from the subject and from the persons, whatever data you are getting, its confidentiality, you have to maintain its confidentiality. You cannot make it public. That is very important. लिमिटेड रीयूज एंड स्टोरेज ऑफ पर्सनल डेटा। लेकिन जो आप पर्सनल डेटा लेते हैं, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको स्टोर करना भी जो है वो इथिक्स के अगेंस्ट में है। ये नहीं कि आप उसको स्टोर करके रखिए, उसको अगर स्टोर करके तब तक आप रखिए जब तक आपको जरूरत है, उसके बाद आप उसको खत्म कर दीजिए और उसको रीयूज, मतलब एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया, उसी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह इस्तेमाल करें, तो आपने उसके लिए तो कंसेंट लिया नहीं, यू हैव नॉट टेकन द कंसेंट फ्रॉम द पर्सन, तो वो भी जो है जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवॉइडिंग हार्म, कोई हार्म जो है ना करें। रेस्पेक्ट फॉर थर्ड पार्टीज, researchers should consider the effect of research on third parties that are not directly included in the research. जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई एक ट्राइब है, आप किसी ट्राइब में 2-4 लोगों को पकड़ लिया और उससे ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया। आप तो कहेंगे साहब इंडिविजुअल ने कंसेंट दिया था, उनसे इंफॉर्मेशन ले लिया, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लेकर के जब पब्लिक कर रहे हैं तो पूरी ट्राइब और पूरी सोसाइटी पर उसका असर पड़ रहा है। तो ये थर्ड पार्टी का मसला आ जाता है। भाई ठीक है, जिससे इन्होंने कंसेंट दे दिया, लेकिन इनके इंफॉर्मेशन देने से और इनके ये बात बताने से दूसरे लोगों पर भी उसका नेगेटिव असर हो रहा है, तो दैट वी आल्सो हैव टू कंसीडर। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हमने बता चुके हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज रिसर्च इथिक्स ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशंस। रेस्पेक्ट फॉर वल्नरेबल ग्रुप। देखिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो वल्नरेबल हैं, जैसे बच्चे हैं, औरतें हैं, ट्राइबल्स हैं, प्रिजनर्स हैं, स्लेव्स हैं, तो ये वल्नरेबल ग्रुप हैं। इनको आप ये डिफेंसलेस हैं, ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कंसेंट दें, इनको आप जो है इनके लिए जो है आपको रिस्पेक्ट और इनके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि इन पर जब आप एक्सपेरिमेंट करें और ट्रायल करें तो पूरे प्रोसीजर और कानून को फॉलो करते हुए, इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल मोन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स। जो कल्चरल मोन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनका भी प्रोटेक्शन। आपके एक्सपेरिमेंट करने से, आपके रिसर्च करने से उन पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए कि उसमें आपके एक्सपेरिमेंट करने में बिल्डिंग को ही आपने डैमेज कर दिया, उस मोन्यूमेंट को डैमेज कर दिया। रिसर्च इथिक्स एंड रिसर्च कम्युनिटी। अब रिसर्च इथिक्स और रिसर्च कम्युनिटी, आपके साथ दूसरे लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उनके मामले में तो को ऑथरशिप आता है। ऐसा नहीं कि ऑथर ही पूरा क्रेडिट ले ले और जो को ऑथर हैं, दूसरे लोगों ने उसमें जो पार्टिसिपेट किया, उस रिसर्च में हेल्प किया, उनको जो है ड्यू क्रेडिट ना मिले। तो इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करें। जैसे हमारे यहाँ मतलब 2 ऑथर हैं तो 60% क्रेडिट हम लोग जो एपीआई कैलकुलेट करते थे तो 60% क्रेडिट जो फर्स्ट ऑथर को देते थे, जो करस्पॉन्डिंग ऑथर होता था 40% क्रेडिट हम दूसरे ऑथर को देते हैं। तो जो क्रेडिट का प्रोसीजर है वो ड्यू उसमें होना चाहिए। गुड साइटेशन प्रैक्टिस। जब भी हम किसी के रिसर्च को इस्तेमाल करें, किसी दूसरे के वर्क को, तो उसको साइट करना बहुत जरूरी है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। दैट वी हैव टू डू बिकॉज अदरवाइज जो हमारे दूसरे रिसर्चर हैं उनके वर्क को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और रिपीटिशन कर रहे हैं, कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। अब जैसा कि हमने बताया था कि यूजीसी ने जो इधर जो इंटरनेट बढ़ा, इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ, डिजिटाइजेशन हुआ, कंप्यूटर आया और उसके बाद कंप्यूटर की कीमत भी घटी,
डेस्कटॉप की कीमत घटी, लैपटॉप की कीमत घटी, मोबाइल्स की कीमत घटी। तो इधर जो है काफी जो है ऑनलाइन जर्नल्स भी बहुत सारे आ गए। अब ऑनलाइन जर्नल्स भी बहुत सारे आ गए, प्रिंट में जो थे वो थे ही, ऑनलाइन जर्नल आ गए। और जर्नल इसलिए ज्यादा आ गए, जैसा कि मैंने बताया, उसकी वजह ये रही कि एपीआई यूजीसी ने लागू कर दिया था, जिसमें हमें आर्टिकल पब्लिश ही करना था, किताबें लिखना ही था, चैप्टर पब्लिश। तो हमें अगर प्रमोशन चाहिए तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना था, जिससे हमें पब्लिश करना था। अब हमें पब्लिश करना था, उधर हमारी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जर्नल्स भी आ गए। उसमें बहुत सारे प्रीडेटरी जर्नल थे। उन लोगों के पास मेल भेजने लगे कि साहब 3,000 रुपया दीजिए और आज आर्टिकल भेजिए और कल पब्लिश हो गया, और 2,000 आप दीजिए, आज भी भेजिए, 500 आर्टिकल पब्लिश हो गया। इसी तरह किताब छपवाने के लिए जो पब्लिशर हैं, वो जो ऑथर्स हैं, उनसे पैसा लेने लगे। भाई आपको एक किताब छपना है, बस ठीक है, आप हमें जो है MS वर्ड में दे दीजिए और उस पर किसी पेन ड्राइव पे, बाकी हम पब्लिश कर देंगे, इतना पैसा दे दीजिएगा। तो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मशरूमिंग हो गई जर्नल्स की, ऑनलाइन जर्नल्स की, और इसमें प्रीडेटरी जर्नल, सब स्टैंडर्ड जर्नल, इस टाइप के जर्नल आ गए। तो फिर यूजीसी ने अपना एक प्रोजेक्ट के तहत ये केयर लिस्ट बनाई कि भाई कुछ एक लिस्ट बनाई जाए, स्टैंडर्ड जर्नल्स की एक लिस्ट बनाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये जर्नल्स हैं जो इनमें पब्लिश करें, इसका मतलब आपका आर्टिकल जो है पब्लिकेशन स्टैंडर्ड का है, इसमें नहीं है तो सब स्टैंडर्ड का है। अब यूजीसी ने जो लिस्ट बनाई उसको यूजीसी केयर लिस्ट कहते हैं। तो इसमें भी उस तरह के जर्नल जो हैं अपना तरकीबों से लोगों ने घुसा लिया, सिफारिश लगा करके जर्नल, और बहुत सारे अच्छे जर्नल्स जिनको लोगों ने परसू नहीं किया वो यूजीसी लिस्ट में नहीं आ पाए। तो ये सब भी हुआ। तो इस लिस्ट को बार बार रिवाइज भी किया गया। कुछ जर्नल जो गलती से उसमें चले गए थे उनको निकाल बाहर किया गया, कुछ अच्छे जर्नल जो नहीं उसमें जा सके थे उनको लिया गया। तो इसका रिवीजन भी हुआ यूजीसी। तो अब यूजीसी जो है, जब आप देखें जो 2018 का जो है आप रेगुलेशन अगर देखें तो उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखें तो लिखा है जैसे इतने आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए इन यूजीसी लिस्टेड ऑब्लिक पीयर रिव्यूड जर्नल। अब ये तो यूजीसी ने एक लूपहोल खोल दिया। अगर खाली यूजीसी लिस्टेड कर देते तो ऑब्जेक्टिव हो जाता भाई यूजीसी लिस्टेड ये है लिस्ट ऑफ जर्नल, अगर इनमें पब्लिश है तो ठीक है, लेकिन साथ में लिख दिया पीयर रिव्यूड जर्नल। अब पीयर रिव्यूड तो कोई भी जर्नल हो सकता है। इनफैक्ट जो प्रीडेटरी जर्नल है वो सबसे ज्यादा पीयर रिव्यूड जर्नल है। वो तो सारी कंडीशन पूरी करते हैं जो भी आप सोच सकते हैं, बल्कि जो नहीं सोचे वो भी कंडीशन उसमें लिखी रहती है। हमारा तो जर्नल इतना स्टैंडर्ड का, तो आप सोचेंगे ये तो बहुत ही अच्छा जर्नल है इस फील्ड का, अगर आप पढ़ेंगे उनका कवर पेज तो। अब इस केयर लिस्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये दिए हुए हैं। प्रमोशन ऑफ क्वालिटी रिसर्च बाय द फैकल्टी मेंबर्स एंड क्रिएटिंग credible research, promotion of academic and research integrity as well as publication ethics, ये सब उसके objectives हैं that we have told you. डेटा शेयरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका शेयरिंग करें ताकि दूसरे लोग भी उसका इस्तेमाल करें और आपके रिजल्ट्स को वेरीफाई किया जा सके। We come to this UGC regulation जो है, promotion of academic integrity and provision of plagiarism in higher educational institution regulation 2018, ये जो है UGC की वेबसाइट पे अवेलेबल है और आप UGC की वेबसाइट पे इसे देख सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है, प्लेगरिज्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जाहिर सी बात आप सब लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन लिखा हुआ लेकिन जानते हैं प्लेगरिज्म का ऑब्जेक्टिव एक प्लेगरिज्म को चेक करना, अच्छे रिसर्च को बढ़ावा देना और क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देना, डुप्लीकेशन को चेक करना, रिपीटिशन को चेक करना और अननेसेसरी दूसरे के वर्क को लेकर के अपना बना के क्रेडिट लेना, इन सबको चेक करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। इसमें यूजीसी ने बहुत मेथोडिकल तरीके से किया है। इसमें सिमिलरिटी चेक्स, जो प्लेगरिज्म में जो हम सॉफ्टवेयर्स हैं, जो दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ अनपेड फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। वो फ्री सॉफ्टवेयर जो है आपके अवेलेबल है, लेकिन वो उतने वर्सेटाइल नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं जितना जो है पेड जो है सॉफ्टवेयर्स हैं। पेड सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं और जाहिर सी बात उनकी कीमत ज़्यादा है तो इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता। यूनिवर्सिटीज़ के पास है, वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पीएचडी को जो है चेक करने के लिए प्लेगरिज्म के वो इस्तेमाल करती हैं
आप भी कर सकते हैं। बहरहाल यूजीसी की रिक्वायरमेंट ये है कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जाके आपने कोई आर्टिकल अगर लिखा है या कोई किताब लिखा तो आप जाके बड़े आराम से सॉफ्टवेयर से वो चेक करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करनी है फैसिलिटी कि जहां पर आपने कोई आर्टिकल लिया तो उसका प्लेगरिज्म का चेक कर सकते हैं। रिसर्चर जो डिसर्टेशन लिख रहे हैं या पीएचडी लिख रहे हैं तो वो भी उस पर चेक कर सकते हैं। फिर प्लेगरिज्म के लिए यूजीसी कहती कमेटी होनी चाहिए। पहली कमेटी जो है डिपार्टमेंट लेवल पे होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी कमेटी डिपार्टमेंट के लेवल पर होनी चाहिए, जो बेसिक कमेटी है। और दूसरी कमेटी जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे होगी, इंस्टीट्यूट लेवल पे होगी और कॉलेज लेवल पे होगी। अब जो है सबसे पहली जो शिकायत अगर किसी को करनी है तो डिपार्टमेंटल इंटीग्रल कमेटी करेगा, साहब ये केस है प्लेगरिज्म का। वो कमेटी जो है अपने आप सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकती है। ऐसा नहीं कि कोई रिपोर्ट करे तभी वो कमेटी जो है उसमें करेगी, सुओ मोटो भी वो कमेटी जो है अपना ले सकती है। अब उस कमेटी कौन मेंबर होंगे ये भी यूजीसी ने बता दिया है कि डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी एकेडमिक इंटीग्रिटी कमेटी में कौन होगा, यूनिवर्सिटी वाले में कौन होगा, ये सब बना दिया है। खाली आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब जो आपका रिसर्चेस हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं प्लेगरिज्म के दायरे से बाहर हैं, क्योंकि प्लेगरिज्म में जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सिमिलरिटी चेक करता है। 14 कंसेक्यूटिव वर्ड्स से वो सिमिलरिटी चेक करता है, वो इससे ज्यादा नहीं करता। प्लेगरिज्म अगर आपने उनकी स्पिरिट लिया है उन्हीं की चीजों को, लेकिन उसकी लैंग्वेज बदल दिया है, उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दिया है, तो प्लेगरिज्म उसे चेक नहीं कर सकता। वही चीज जो उन्होंने लिखी वही मैंने भी लिख दी, लेकिन उसके सेंटेंसेस को हमने चेंज कर दिया, उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, तो प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर उसको नहीं पकड़ सकता। प्लेगरिज्म सिर्फ सिमिलरिटी चेक करता है, और सिमिलरिटी में बहुत सारी चीजें जो है एक्सक्लूडेड हैं। जैसे क्या है कि कोटेड वर्क जो है, जो आपने जिसका एक्नॉलेजमेंट कर दिया है, जिसका साइटेशन कर दिया, वो सब एक्सक्लूडेड है। रेफरेंसेस एक्सक्लूडेड है, बिब्लियोग्राफी एक्सक्लूडेड है, टेबल ऑफ कंटेंट एक्सक्लूडेड है, प्रीफेस एक्सक्लूडेड है, एक्नॉलेजमेंट एक्सक्लूडेड है। जितने जेनेरिक टर्म्स हैं, जो आम इस्तेमाल होने वाले टर्म्स हैं, वो भी एक्सक्लूडेड हैं। जो लॉज हैं, जो कानून है, जाहिर बात आप नहीं बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही, दूसरी एजेंसीज बना रही, तो उन लॉज को जो लिखे हुए कोर्ट की वो भी सब एक्सक्लूडेड है। स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं वो भी एक्सक्लूडेड हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं वो भी एक्सक्लूडेड है। तो आपका कौन सी चीज जो है वो सिमिलरिटी चेक होगा प्लेगरिज्म चेक में? आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, आपका समरी होगा, हाइपोथेसिस होगा, ऑब्जर्वेशंस होंगे, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। यही चीजें जो हैं आपकी जो है प्लेगरिज्म चेक में आएंगे, और सिमिलरिटी चेक इन्हीं का किया जाएगा, सबका नहीं किया जाएगा। उसके बाद लेवल ऑफ प्लेगरिज्म। अब इसमें प्लेगरिज्म के लेवल है। पहला लेवल 0 है, जिसमें 10% पे कोई पनिशमेंट नहीं है, ना उसको कोई इग्नोर करने की जरूरत, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। दूसरा लेवल है 10 से 40%, ये प्रॉब्लम है इसमें। तीसरा है 40 से 60%, और तीसरा है सिमिलरिटी अबव 60। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ प्लेगरिज्म है जो यूजीसी ने बताया कि किस कैटेगरी में आपका प्लेगरिज्म आ रहा है। अगर आप प्लेगराइज किए हैं तो किस लेवल का है, वो लेवल भी यूजीसी ने डिफाइन कर दिया है। अब उसके लिए सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल और यूनिवर्सिटी, ये मैंने बता चुका हूं आपको। अब इसके लिए पेनाल्टीज भी यूजीसी ने ये भी बता दिया कि क्या पेनाल्टी लगाई जाए। तो अगर 10% से कम है या 10% है तो उसके लिए कोई पेनाल्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 से 40% है तो इसमें आपकी पेनाल्टी है। सच ये स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए अलग है, रिसर्चर्स के लिए अलग है, ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए है कि इन्हें जो है अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज करना है 6 महीने के अंदर, ये अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज करें और जो प्लेगरिज्म का इशू है इसको रिजॉल्व करें। अगर 40 से 60% के बीच में है तो इन स्टूडेंट को डिबार किया जा सकता है सबमिटिंग ए रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक ये रिवाइज भी नहीं जमा कर सकते, 1 साल बाद फिर जमा करेंगे अपना। अगर 60% से ज्यादा है तो सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसिल। अगर किसी के थीसिस में 60% से ज्यादा प्लेगरिज्म है तो उसको जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता। और अगर उसको ऑलरेडी डिग्री अवार्ड हो चुकी है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब यह है जो एकेडमिशियन, जो रिसर्चर हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए क्या पेनाल्टी है। तो 10% में उनके लिए भी कोई पेनाल्टी नहीं है, लेकिन अगर 10 से 40% है
तो शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट। अगर 10 से 40% के बीच में प्लेगरिज्म है तो पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट ये है कि जो भी आर्टिकल है, जो भी किताब, उसको विड्रॉ कर ले, चाहे आप वापस ले लीजिए। अगर 40 से 60% के बीच में है तो शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, तो पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी, शैल बी डिनाइड ए राइट टू वन एनुअल इंक्रीमेंट, एक एनुअल इंक्रीमेंट उसका काट लिया जाएगा। Shall not be allowed to be supervisor to any new master's, MPhil, PhD student, scholar for a period of 2 years. अगर लेवल 3 का प्लेगरिज्म है, दैट इज अबव 60%, देन उसके लिए क्या पनिशमेंट है? शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, शैल बी डिनाइड ए राइट टू 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट की बात है। Shall not be allowed to be a supervisor to any new master's, MPhil, PhD student for a period of 3 years, 3 साल के लिए वो जो डिबार कर दिया जाएगा, वो सुपरवाइज नहीं कर सकता मास्टर, एमफिल या पीएचडी को। और उसके 2 इंक्रीमेंट जाएंगे और मैन्युस्क्रिप्ट्स को विड्रॉ करना। तो यूजीसी ने पेनाल्टी भी दे रखा है। पेनाल्टी में आप देखें, इस बात का ध्यान देखें, क्योंकि ये जो है प्लेगरिज्म और जो इथिक्स के इश्यूज हैं, इनको लेजिस्लेशन के तौर पे नहीं रखा है कि मतलब हथकड़ी लग जाएगी और जेल में चले जाएंगे और पुलिस थाने में बैठा दिए, ऐसा नहीं है। बल्कि एक जेंटलमैन की तरह जो पनिशमेंट हो सकता है वो पनिशमेंट दिया गया, लेकिन इसको प्रिवेंट करना, इसको चेक करना वो बहुत जरूरी है। उसके लिए रेगुलेशन यूजीसी ले आई एंड दैट इज देयर इन द इयर्स टू कम। इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लोगों के सजेशन जब आएंगे और इसमें केसेस जब रिपोर्ट होंगे तो फिर इसके लाइट में इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो है, ये प्लेगरिज्म के फॉर्मल कानून यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट में आ गए हैं। अब इसका मतलब इसके तहत वो उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है, जो कि पहले नहीं था। पहले ऐसा कानून नहीं था, तो पहले लोग करते भी तो बच जाते थे, क्योंकि कोई इस तरह का कानून नहीं था। नाउ अब फॉर्मल रूल्स आर देयर। So I think time is over. It's going to be 10:30 and moreover few slides are left, but I'll stop at this point and would like to invite the question because I'm supposed to answer, take up some question. तो कुछ सवाल हम देना चाहेंगे, आप लोग प्लीज जो है लिमिटेड सवाल पूछें, टाइम तो खत्म हो चुका है। हेलो सर, इट्स मी हिरेन पटेल। जी आप पूछें सर प्लीज। सर मुझे हम एथिक्स की बात कर रहे थे, तो ये लास्ट 2 स्लाइड जो आपने समझाई उसमें एक था कि अगर मान लीजिए 60% अबव स्टूडेंट के लिए प्लेजियरिज्म है तो ही विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द कोर्स। एम आई राइट सर? यस यस सर। बट एट द सेम टाइम इफ अ टीचर इज कॉट, अगर टीचर का 60% अबव है तो उसको सिर्फ 2 एनुअल इंक्रीमेंट ही उसका रुका जाएगा, जिसकी जॉब पे कोई असर नहीं पड़ेगी। तो टू व्हाट एक्सटेंट, तो सर एथिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने तक ये अच्छा है कि स्टूडेंट को हम कोर्स से ही निकाल देंगे और टीचर को सिर्फ 2 इंक्रीमेंट ही उसका रुका जाएगा? नहीं, इसमें एक बात बता दें। देखिए, स्टूडेंट जो है उसको हम उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये फ्रीडम होगी कि फिर जाके किसी दूसरी जगह वो अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर ले, इससे उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो फिर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन टीचर को मैंने पहले कहा कि ये उस तरह का लेजिस्लेशन नहीं है जिसमें बिल्कुल ऐसा पनिशमेंट दिया जाए कि हथकड़ी लगा दिया जाए, थाने में लेकर बैठा दिया। जेंटलमैन देखिए, रिसर्च जो करते हैं तो ये समझा जाता है कि भाई लर्नड लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, चीजों के प्रॉस कॉन्स को समझते हैं, तो एक जेंटलमैन के लिए इशारा और इस तरह का एक माइनर पनिशमेंट ही काफी है, कम से कम उनको रेजिस्ट करने के लिए, इस काम को ना करने के लिए। लेकिन अगर लोग इसके बाद भी नहीं सुधरे और इस पर जो है करते रहे और इस तरह के केसेस ज्यादा आए, तो हो सकता है आने वाले दिनों में यूजीसी वही करे जो आप बता रहे हैं कि उसकी भी सर्विस खत्म कर दें कि भाई अब इस लायक आप नहीं है कि टीचिंग में रहें, आपकी सर्विस हम खत्म कर सकते हैं। अभी तो इनिशियली यूजीसी ने पनिशमेंट बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि माइल्ड ही रखा है, बिल्कुल माइल्ड रखा है। उस हिसाब से स्टूडेंट का आपके हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, टीचर का कम है। लेकिन मसला है कि अगर आप एक टीचर जो है उसकी फैमिली भी है, उसकी सैलरी भी है, दूसरे लोग भी डिपेंडेंट हैं, आप टीचर को पनिश कर रहे हैं तो आप बच्चों को भी पनिश कर रहे हैं, बीवी को भी पनिश कर रहे हैं। अगर उसको जॉब का हो गई गलती, किसी लालच में उसने कर दिया, लेकिन अदरवाइज अगर वो पढ़ाने में अच्छा है, वो टीचिंग कर रहा है, वो क्लास रेगुलरली ले रहा है, वहां पर अगर स्टूडेंट को नहीं शिकायत है, तो ये तो छोटा इशू जो रिसर्च का है, तो रिसर्च से उसको जो बेनिफिट होने वाला है उस बेनिफिट को मत दीजिए, साथ में आप 2 इंक्रीमेंट उसका काट ही रहे हैं।
तो इससे आप बकिया तो अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा। तो शायद इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के यूजीसी ने माइल्ड पनिशमेंट रखा है एकेडमिशियन और टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए। लेकिन अगर ये केसेस बढ़ते हैं और लोगों पर इसका असर नहीं होता है और लोग इससे अपनी इस हरकत से नहीं बाज आते, तो हो सकता है आने वाले दिनों में यूजीसी कुछ टफर रूल ले आई। कोई जरूरी थोड़ी कि आखिरी है, इसके बाद यूजीसी अमेंडमेंट कर सकती है, नया कानून लेके आ सकती है। सर ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं बलवंत कुमार वारी। जी सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, पहले क्वेश्चन से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर आपकी स्लाइड हमें चाहिए थी हम लोगों को, तो प्लीज स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट लगा प्लेगरिज्म और WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग। मेडिकल साइंस का तो मैं हूँ नहीं, मैं हूँ कॉमर्स का, बट प्लेगरिज्म और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स बताया वो बहुत ही मतलब कम्प्रहेंसिव और बहुत ही यूजफुल लगा। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि स्लाइड हम लोग को मिल जाती तो ठीक रहता। स्लाइड्स हम आपको सेंटर को दे देंगे, वो आपको वहां से मिल जाएगी जी। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम यूजीसी केयर लिस्ट में अपना कोई पेपर उनके अकॉर्डिंग दिए गए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हम अगर पेपर दे रहे हैं, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है, प्रॉब्लम है नहीं। मैं 31 जुलाई को मैंने दे रखा था पेपर और वो लास्ट डेट की थी। और सर जुलाई के बाद जून को, और जुलाई पूरा बीत गया, अगस्त पूरा बीत गया। तो क्या कोई टाइमिंग होती है यूजीसी केयर की कि पेपर को रिजेक्ट कब तक करना है या उस पर रिव्यू करना है तो कितना समय ले सकते हैं? क्या इसका कोई गाइडलाइन है या नहीं सर? नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई ऐसा गाइडलाइन और नहीं है, लेकिन गाइडलाइन मेरे हिसाब से बनना चाहिए इसका। सर मतलब मैं लगभग 45 डेज हो गए पेपर दिए हुए, एक मेल एक्सेप्टेंस का आया, उसके बाद कुछ दिन आपका वेटिंग पीरियड इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें एकेडमिक फील्ड में मतलब ये समझा जाता है कि भाई लोग करेंगे, लेकिन जब नहीं करते तो कानून बनाना पड़ता है। तो एक्सपेक्ट तो उनसे ही किया जाता है कि जो मिनिमम टाइम है। और आजकल कोरोना का बहाना भी चल रहा है, ये भी एक बड़ा इशू है कि हर चीज जो आप नहीं कर रहे हो कोरोना के उसमें छुप जाता है कि साहब कोरोना की वजह से ऐसा हो गया और यूं हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अब हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि पीएचडी के लिए यूजीसी ने जो अभी लेटेस्ट जो एक्सटेंशन दिया है वो दिसंबर 2021 तक दे दिया जमा करने का। भले आपके 5 साल हो गए, 6 साल आप जमा कर सकते हैं। अब सवाल है, लेकिन मैं आपको डेटा बता रहा हूँ एज ए डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस कि हमारे यहाँ इस कोरोना पीरियड में जितनी थीसिस जमा हुई हैं वो आम दिनों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा थीसिस जमा जी, 2 से 3 गुना। अगर डेटा आप देखें तो आप ये कह सकते हैं साहब कैसे नहीं पीएचडी हो रही। अभी जो सुना, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आप देखें 2018 रेगुलेशन है, उसमें दिया हुआ है 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए पीएचडी मैंडेटरी होगी, ऐसा लिखा हुआ उसमें। अब सवाल है कि उसमें ये बातें आ रही हैं, एक आध पेपर में भी आया, अभी यूजीसी नहीं कहा कि इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जा रहा, ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा। तो सवाल है, एक तरफ तो कोरोना पीरियड में रिसर्चेस ज्यादा हो रही हैं, ज्यादा लोग थीसिस जमा कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं साहब हम पीएचडी कर ही नहीं पाए। तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं। मतलब स्पेशली हमारे स्टेट यूपी में जो गवर्नर ने जो रूल बनाया है हायर एजुकेशन को लेके, तो पीएचडी को कोई मतलब ही नहीं रखा। मतलब पीएचडी का कोई मतलब सेंस ही नहीं है, उसके कोई टर्म ही नहीं है। बट जब आप कॉलेजेस के साथ साथ सर यूनिवर्सिटी में भी यही बात। अच्छा मैं कल नहीं परसों तो द हिंदू में भी ये रिपोर्ट छपी थी पूरी अच्छे से। तो वो तो रिपोर्ट वो मेरे पास वो अखबार का कटिंग है, बट मैंने उनके डायरेक्शन रूल देखे अपने स्टेट के गवर्नर के हायर एजुकेशन में, तो उसमें नहीं है सब सभी। फिलहाल में ये चीज कहा जा रहा है कि आप अगर नेट हो तो यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करिए, और आप आयोग के थ्रू आ रहे हैं, जैसे हम सेलेक्ट हुए हैं वैसे आयोग के थ्रू चलिए। तो ये चीज अभी है। असल में 2 बातें हैं, प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को। देखिए 2 चीजें हैं। यूजीसी ने जो 1 जुलाई 2021 से पीएचडी मैंडेटरी किया था, उसके 2 रीजन हैं, मैं बता दूं आपसे। नंबर 1 रीजन तो यह है कि अगर आप पीएचडी करके आ रहे हैं तो यूजीसी को जो है जो स्टडी लीव देना पड़ता है और जो उसके बदले में दूसरे का अपॉइंटमेंट करता है उससे बच जाएगी, पैसे की बचत। क्योंकि आप पीएचडी करके आ रहे हैं तो आप स्टडी लीव लेंगे नहीं पीएचडी करने के लिए। दूसरी बचत यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे यूनिवर्सिटीज में, वो जो है जब पीएचडी में दाखिला लेते थे, एडमिशन लेते थे, तो जैसे नेट क्वालिफाई करते थे वैसे सब जगह अप्लाई करने पर लग जाते थे।
अब उनका पहला फोकस होता था कि किसी तरीके से यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां इंटरव्यू दे रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और उसमें उनकी पीएचडी जो है सफर करती थी, वो पीएचडी पर फोकस नहीं कर पाते थे, डिले होती थी। अब अगर पीएचडी मैंडेटरी हो जाती है तो फिर वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक पीएचडी करेंगे नहीं, तो पूरी तरह से फोकस होकर के वो पीएचडी करेंगे। जो मेरी समझ में आ रहा है कि यूजीसी के दिमाग में शायद ये बातें रही होंगी जिसकी वजह से उन्होंने पीएचडी मैंडेटरी किया है। लेकिन बात सही है, पीएचडी किया हुआ आदमी और बिना पीएचडी किया हुआ आदमी दोनों में फर्क होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बताइए सर मेरे दो क्वेश्चन। one question, sir. So we have to take a break Sir, half an hour for the next lecture. So please, I request the participants, this is the last question, please. ओके Hello, ओके sir. सर। Hello, सर sir. पहला This is क्वेश्चन तो ये है सर, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो रूल यूजीसी ने लागू किए, ये क्या एप्लीकेबल इस रूल के बाद वाली रिसर्च पे है या उससे पहले भी अगर कोई पब्लिश हो चुका है उस पे भी एप्लीकेबल है? और दूसरा क्वेश्चन एक छोटा सा ये है कि अक्सर बहस होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके। हम इंडियंस कई बार भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने बहुत रिसर्च कर रखी है लेकिन हमारे पास उसका पेटेंट नहीं है और दूसरे देशों के पास है, ऐसा है। तो इस पे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि सर क्या ऐसा है कि हमने सब कुछ पहले खोज रखा है, हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा है? नहीं, देखिए ऐसे में मैं आप दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले सवाल का तो यह है कि देखिए कोई भी कानून, ये बिल्कुल एक जो कानून है, जो लॉज बनाए जाते हैं वो कॉमन सेंस पे होते हैं। अब कोई कानून अगर कॉमन सेंस पे नहीं खरा उतरता तो कानून टिक नहीं सकता है। तो कोई कानून, हमेशा जो कानून बनाया जाता है उसका फ्यूचर में एप्लीकेशन होता है, कभी पास्ट में नहीं होता। आज के कानून से, आज के प्लेगरिज्म के कानून से 1962 में किए गए प्लेगरिज्म को नहीं पनिश कर सकते, या 1980 में किए गए प्लेगरिज्म को पनिश नहीं किए सकते। ये जो एक बेसिक मतलब लॉ का एक कानून का एक प्रोसीजर है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अगेंस्ट में है। ये भी इथिक्स के आगे अनइथिकल होगा कि आज कानून बना रहे हैं और 2010 को आप पनिश कर रहे हैं, जबकि आपने देखिए, अगर हमें पता है कि भाई बाएं चलना जो है ट्रैफिक के हिसाब से ये कानून है, अब हो सकता है हम 2 साल पहले बाएं चल रहे हो, लेकिन कानून तो आज बना है। तो आज आपने कह दिया कोई बाएं चलना है तो हम बाएं चलेंगे, दाहिने चलेंगे तो पनिश कर दीजिएगा। लेकिन जब कानून नहीं था, अब आप कहिए नहीं 5 साल पहले आप चले थे बाएं, दाहिने चले थे, अब उसका पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। तो जब आप कानून बनाएंगे, कानून तो हमेशा आगे के लिए ही होता है, फ्यूचर के लिए होता, पोस्टरिटी के लिए होता, वो कभी पास्ट के लिए नहीं होता। अगर कोई उसको लागू कर रहा तो गलत कर रहा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि इंडिया ने सारी चीजें ढूंढ ली, हमारी असल में एक आदत है, जो सभी जो हमारे रिलीजियस लोगों की आदत है, मुसलमानों की भी, हिंदुओं की भी और क्रिश्चियन की भी, जब किसी साइंटिस्ट ने कोई नई चीज ढूंढ लिया तो कह देंगे देखिए हमारे कुरान में तो पहले से लिखा हुआ है, ये सब हमारे तो फला ग्रंथ में पहले से लिखा हुआ। अरे भाई पहले से लिखा हुआ तो आपने बताया क्यों नहीं, पहले इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया कि साहब हमारे तो इतने साल पहले बता दिया गया था। मसला यह है कि जब कोई आदमी ढूंढ लेता है तो उसको हम जस्टिफाई करने लगते हैं कि तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, हम तो ये लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बातें जो हमारी जो चीजें हैं पुरानी जो हैं, पैटेंट जो है 20 साल तक लागू होगा, ये बता दूं आपसे। पैटेंट लॉ जो है 20 साल तक होता है, अब कॉपीराइट जो है वो 50 साल के लिए होता है। ये फॉरएवर के लिए नहीं होता है। अगर किसी दवा का आपने पैटेंट कराया है तो 20 साल तक वो रहेगा, 20 साल के बाद वो जेनरिक हो जाएगा, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता। आपने कोई अगर नावल लिखा है तो 50 साल तक उसका कॉपीराइट रहेगा। कोई फिल्म बनाई है या कोई म्यूजिक आपने कंपोज किया है तो 50 साल तक रहता, 50 साल बाद तो जेनरिक हो जाता, कोई भी इस्तेमाल कर सकता, कोई भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो फॉरएवर के लिए नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने किया है वो पहले से हमने कर रखा, ऐसा नहीं। अब आप चीजों को, पुरानी चीजों को 1000 साल पहले का आप हवाला दें, 500 साल का पहले का हवाला दें, तो अब जो पेटेंटिंग के प्रोसीजर आप उसको फॉलो कीजिए। 2005 से आपका है। अगर आपको शिकायत है WTO में जाइए और WTO का बता दें कि WTO की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई कंट्री शिकायत करता है तो 1 महीने के अंदर वो फैसला दे देंगे। आपके तरह नहीं है कि मालूम हुआ कि जो आपको याद है कि जो एक समस्तीपुर बम ब्लास्ट हुआ था 70s में, जिसमें आपके रेलवे मिनिस्टर मारे गए थे, उसका अभी 4 साल पहले आपका फैसला आया, जबकि वो लोग जो इन्वॉल्व थे उसमें वो सब मर मरा गए, उनके बच्चे भी शायद मर गए।
तो ऐसा पनिशमेंट होता है यहाँ पर, मालूम हुआ है कि एक स्टेज के बाद जो आप जजमेंट दे रहे हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, खाली एकेडमिक वैल्यू होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो WTO बहुत स्ट्रांग है और उसका जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी जो है काफी स्ट्रांग है। अगर किसी कंट्री को शिकायत है तो फॉर्मल वे में शिकायत करे। असल में डेवलपिंग कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम क्या है, पहले वो प्रेशर में आ जाते हैं इन डेवलप कंट्रीज से। अमेरिका इनको इस्तेमाल करता, कहता है इस पे वोट देना है, वोट देना है, वहां वोट दे देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं देखिए साहब हमारे अगेंस्ट में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही। आप ये मुझे बताइए, WTO के 2/3 मेंबर जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, पुअर कंट्रीज के 2/3, 1/3 मेंबर जो है डेवलप कंट्रीज से। और WTO में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक की तरह वोटिंग नहीं है कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन उतना आपकी वोट की वैल्यू, ऐसा नहीं है। WTO में 1 मेंबर 1 वोट है, यानी एक मेंबर की एक वोट की हैसियत है। तो इसका मतलब अगर जो मेजॉरिटी है उसके अगेंस्ट में कोई फैसला हो ही नहीं सकता। तो अगर 2/3 मेंबर जो है WTO के डेवलपिंग कंट्रीज से हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट में फैसला कैसे हो जाता वहां पर? इस सवाल का जवाब कौन देगा? फिर बाहर आकर के यही डेवलपिंग कंट्रीज फॉर पब्लिक कंजम्पशन वो दूसरी बातें करने लगते हैं, अंदर कुछ और करते हैं, बाहर आके कुछ और करते हैं। तो ये जो है पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ और बातें करते हैं। मैं इस बेसिक सवाल कहता हूं कि डेवलप कंट्रीज कैसे प्रिवेल कर जाते हैं WTO की मीटिंग में, जबकि उनकी तादाद बहुत लिमिटेड है, ज्यादा तादाद जो है डेवलपिंग कंट्रीज की है। लेकिन क्या कि अमेरिका ने कह दिया तो 50 अफ्रीकन कंट्री लाइन में आ गए, वो अमेरिका ने जो कह दिया उसी हिसाब से अंधे होके वोट दे देंगे, कर लीजिए जो कुछ करना है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ ही कंट्रीज हैं जो वोकल हैं, जिसमें इंडिया एक है, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज साथ नहीं देते हैं, वो इन डेवलप कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और इसलिए कानून ऐसे पास हो जाते हैं जो बात सही है डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट में भी होते हैं। तो पैटेंट का ऐसा नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो बात सही नहीं है। पैटेंट का पूरा प्रोसीजर है, अगर आपको है तो आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी के सामने जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फाइट कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर वो फैसला दे देंगे। ऐसा जैसा कि साहब बताया गया कि साहब तो कोई वो नहीं, हालांकि मैं तो रुक सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी हो सकता वक्त मिलेगा तो आपके साथ स्पेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। थैंक यू सर।